Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. So guys, how are you all? I hope you are well and you are studying very well. So guys, we'll be starting our new lecture of center of mass. So in the last lecture we had studied about the first case of motion of center of mass, where we had taken that net force on the complete system will be zero, and because of which the center of mass, acceleration of center of mass is going to be zero, and the velocity will not change. Velocity of center of mass will remain constant. In that case, we had again taken a case of the initial velocity of center of mass is zero. So initially the center of mass was not moving. So it is not going to move after some time also, because the net force on the complete system is zero. Clear? So velocity of center of mass will not change. It means displacement of center of mass will be zero. Location of center of mass will not change. So if we talk about a particular direction, if net force on that complete system is zero in that particular direction, then center of mass is not going to change its location. And we had solved some problem related to this. But one thing is that in the exam of NEET or in the syllabus of medical, आपके जो questions from this topic, जो आपका motion of center of mass, where you just find the displacement, where the initial velocity of center of mass is zero, इसमें से questions काफी कम आते हैं, ठीक है? So ज़्यादा question आते हैं हमें conservation of linear momentum से, and which topic we are going to see here. So in this lecture we will be seeing the conservation of linear momentum. So you can write the topic conservation of linear momentum. So this is the second case of motion of center of mass, where again we are taking that the net force on the complete system is zero. Definitely the individual particles in that system, they can have some force acting on them because they are interacting with each other. They can have some velocity, they can have some acceleration, but for the complete system, if net external force is zero, the acceleration of center of mass is going to be zero. So in the last case what we had taken, that initial velocity of center of mass is zero. Now in this case we are taking that the initial velocity of center of mass is a non-zero quantity and it is going to remain constant. So basically what we are doing, you can write the topic conservation of linear momentum. So here we have F total on the system is 0. So A of center of mass is going to be 0. It means delta V of center of mass is going to be 0. It means velocity of center of mass is going to remain constant. Velocity of center of mass will be constant. Velocity of center of mass is not going to change. जो individual particles हैं, they may have acceleration, they may change their velocity. But आप जब center of mass की बात करोगे, a point which is representing the complete system, पूरे system को we have replaced with a point which has mass equals to total mass of the system. If we talk about that, then it will have a constant velocity. वो constant velocity से घूमता रहेगा. अंदर क्या हो रहा है? Inside that system doesn't matter. So here we will have V of center of mass is equal to 0. Now can we find out the velocity of center of mass? Yes. कैसे find out किया था? Velocity of center of mass was equal to m1 v1 plus m2 v2 plus up to mn vn divided by m1 plus m2 plus up to mn. Clear? And this is the momentum, linear momentum of first particle, linear momentum of second particle, linear momentum of the nth particle. So this is basically the total linear momentum of the system. Total linear momentum of the system. Sum of all the linear momenta in that system. Clear? Whatever particles we have in that system, we are adding the momentum of all the particles in that system. Clear? So divided by total mass of the system. Now what we are saying, that velocity of center of mass is constant when we have this condition. So velocity of center of mass is constant in this case. So if velocity of center of mass is constant, so I can write Pt, total momentum of the system, divided by mt is equal to, it is going to remain constant. Now this is already a constant. This is already a constant. We are not talking about any variable mass. All the masses or all the bodies in the system, वो कैसे हैं? उनका कोई variable mass नहीं है. They have a constant mass. So if that is the case, it means this is already constant. It means this is going to remain constant. क्या आया हमारे पास? P total of the system is going to remain constant. बहुत important है ये, और इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे. So total momentum of the system is going to remain constant. क्या आएगा ये? It's a constant. ठीक है? अब
अब यहाँ पे जब हम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी एंड डायरेक्शन भी। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट मतलब ये तो एक वेक्टर है ना, सो इट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी। इफ सेंटर ऑफ मास वाज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड इन दिस डायरेक्शन, देन सेंटर ऑफ मास विल मूव like that only, ना उसका डायरेक्शन चेंज होगा ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। Similarly here what we have, here we have m total into velocity of center of mass, clear? So now again when we are talking about the linear momentum of the system, ये कैसा रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड as well as the direction will be constant, और इसी को हम क्या बोलते हैं, conservation of linear momentum। The momentum will be conserved, magnitude as well as the direction will remain constant, both the direction and the magnitude both are not going to change, clear? So this is the conservation of linear momentum। अब हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे कि initially this was the system and then this happened to the system। अब बताओ कि अगर पहले velocity of center of mass ये था, या फिर जो आपका सिस्टम है उसमें this particle was having this much velocity, this particle was having this much velocity, फिर इनके बीच में कुछ interaction हुआ and then the velocity of this particle has changed, तो फिर इसकी velocity क्या होगी? तो हम उसमें क्या करेंगे, हमें ये पता है कि इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम दोनों कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, क्योंकि जो भी सिचुएशन हुई है, जो भी उसमें इंटरेक्शन हुआ है या चेंजेस आए हैं, बिफोर दैट एंड आफ्टर दैट जो मोमेंटम था, मोमेंटम तो कांस्टेंट रहेगा, तो पहले जो मोमेंटम था और बाद में जो मोमेंटम था क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहां से आई कैन राइट डेल्टा पी इज इक्वल टू 0, है ना, चेंज इन मोमेंटम इज 0, सो पी फाइनल minus P initial is equal to 0, it means P final is equal to P initial. So final momentum of the system is equal to initial momentum of the system, clear है चीज? अब इसके एग्जांपल्स, so like आपको एग्जांपल दिया था जो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फर्स्ट केस था, उसमें कि when you jump from the boat, when you jump from the boat तो आप इस साइड आते हो और बोट इस साइड जाती है, so in the horizontal direction we did not have any force, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या थी, पहले द मैन वाज एट द बोट और दोनों क्या थे, रेस्ट में थे, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसी थी, 0 थी। अब यहाँ पे जब मैन जंप करता है फ्रॉम द बोट तो कुछ वेलोसिटी से जंप करेगा, इट मींस वन बॉडी ऑफ दैट सिस्टम हैज गेन्ड सम वेलोसिटी, लेकिन भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इट मींस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो क्या होनी चाहिए, अभी भी 0 होनी चाहिए, तो इसने इधर वेलोसिटी गेन की तो इसने भी इधर वेलोसिटी, बोट ने इधर वेलोसिटी गेन कर ली, तो क्या होता है, व्हेन यू जंप फ्रॉम द बोट, बोट भी कैसे जाती है, इट मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है? सेम आपका जो रिकॉइल होती है गन, व्हेन यू फायर बुलेट फ्रॉम द गन तो बुलेट ऐसे जाती है और गन ऐसे आती है, सो दिस इज आल्सो द बिकॉज ऑफ द सेंटर ऑफ मास वाज हैविंग 0 वेलोसिटी इनिशियली। तो अब क्या हुआ, इसने इधर वेलोसिटी गेन किया, तो जब आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखोगे तो इनिशियली क्या था, m1 into 0 plus m2 into 0 divided by m total, it was 0, है ना? गन की वेलोसिटी भी 0, बुलेट की वेलोसिटी भी 0। नाउ बुलेट हैज गेन्ड सम वेलोसिटी हियर, हम जब फायर कर रहे हैं तो बुलेट इस कुछ वेलोसिटी से इधर गई, तो ये क्या आ गया m1 into v, तो अब क्या हो जाएगा, इट विल बिकम नॉन जीरो, तो यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, m2 को कुछ नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी, कुछ नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी इसको गेन करनी पड़ेगी, देन ओनली दीज टू आर गोइंग टू कैंसिल ईच अदर, और फिर हमें अगेन क्या मिलेगा, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0। तो अगर एक ने वेलोसिटी इधर गेन की, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अब किधर दिखेगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हैज टेंडेंसी टू बी इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि अब हमारे पास ये टर्म आ गया, क्लियर? नाउ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो 0 ही रहनी है, तो फिर क्या होगा, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी इट विल आल्सो गेन अ वेलोसिटी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एंड दोनों क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल अगेन बी 0, क्लियर? सो वी आर गोइंग टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स ऑन दिस। सो मेन चीज इसमें जो हमें यूज करनी है दैट इज P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल। जो हमारा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फर्स्ट केस, मोशन व्हेन सेंटर ऑफ मास वाज एट रेस्ट, उस केस में हमारा क्या फंडा था कि m1 डेल्टा x1 इज इक्वल टू माइनस m2 डेल्टा x2, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल। सो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, momentum will be conserved, its direction as well as its magnitude is going to remain constant, and that is the conservation of linear momentum. So first we'll solve some very easy problems. So I'll give the problems. So find out the velocity of center of mass and momentum of the system in the following cases. So first is this, it is moving, the mass m is moving with 2 meter per second and mass 4m is moving with
mass 2m is moving with 4 meter per second. Then find out the velocity of center of mass and momentum of the system. 2 meter per second, 2 meter per second, 2√2 meter per second at an angle 45 degree. Same question, find the velocity of center of mass and the momentum of the system. So in first case we have velocity of center of mass is equal to m1 v1, so 2m, I am taking plus this side and minus this side, so 2 m1 v1 m2 v2, so minus 4m 4 into 2m, 4 into 2m, this velocity is in this direction, divided by total mass m plus 2m 3m, so what we have, minus 6m divided by 3m, it is minus 2 meter per second. Minus 2 meter per second means in this direction. So definitely it is going to happen. The velocity of center of mass will be in which direction? In the direction where the bigger mass or bigger velocity is there. है ना? हमारे पास क्या आता है? Velocity of center of mass is equal to m1 v1 plus m2 v2. तो यहाँ पे जो टर्म ज्यादा होगा, m1 v1 ज्यादा होगा तो उस डायरेक्शन में आएगी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, m2 v2 ज्यादा होगा तो उस डायरेक्शन में. तो किस पे डिपेंड करेगा कि किसका मोमेंटम ज्यादा है. इफ दिस पार्टिकल हैज मोर मोमेंटम देन दिस, देन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इन दिस डायरेक्शन, है ना. और वी कैन से द नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी इन दिस डायरेक्शन. एंड इफ मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल इज मोर, देन द मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास और मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी इन दिस डायरेक्शन. अब हमें क्या फाइंड आउट करना था? दूसरा हमें फाइंड आउट करना था मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. सो एक चीज तो यह है कि आप लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या होता है, नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डिवाइडेड बाय टोटल मास. सो यहां से डायरेक्टली व्हाट यू कैन राइट, P total of the system is equal to M total of the system into velocity of center of mass. So P total of the system will be, velocity of center of mass है -2 and total mass of the system is 3m. So it will be -6m. Clear? और कैसे कर सकते हैं? तो P total of the system will be m1 v1 plus m2 v2. Momentum of first particle plus momentum of second particle. Momentum of first particle is 2m. Momentum of second particle is 8m minus 8m. So it will be -6m. Clear? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ऐसे ही कर रहे हैं, थोड़ा सा मोमेंटम वगैरह फिर से रिवाइज टाइप का करने के लिए. सेकेंड इज, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. ऑल दी मासेस आर सेम, ऑल दी मासेस आर सेम, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास is equal to m 2j minus 2j cap. Now we have here three directions. ठीक है, all the three are in different direction. तो हमारे पास क्या जाएगा, -2j cap plus 2i cap, और इसका क्या जाएगा इधर 2√2 cos 45, 2√2 sin 45. So 2√2 cos 45 is 1/√2. So here we have 2 meter per second. Here we have 2 meter per second. तो उसमें क्या जाएगा, -2i cap plus 2j cap, -2i cap plus 2j cap divided by total mass is 3m. So what we got, -2i plus 2i minus 2j plus 2j, it is 0. So here all the three particles are moving, but the net velocity of center of mass, the velocity of center of mass is 0. एक पार्टिकल इधर जा रहा है, एक पार्टिकल इधर जा रहा है, दूसरा तीसरा पार्टिकल इधर और इधर, मतलब इस साइड जा रहा है. So all the three particles are moving, but the velocity of center of mass is 0 and momentum of center of mass is also 0. So in this case, if these particles are colliding with each other and they are gaining some other velocity or they are changing their velocity, let's say अभी तो यहाँ पे कोलाइड करने की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर केस होता है यहाँ पे कि all the three particles have velocities but they are colliding and then they are changing their velocity, तो उस केस में क्या होगा भाई, initially momentum is 0, finally be whatever velocity they have, they will have those velocity such that the net momentum of the system is again 0. In this case
let's say they collide with each other and then they are moving away from each other with different velocity, or maybe there is some movement. Let's say it is moving in this direction, this is also moving in this direction with some velocity v or u. Clear? So they will have their velocity such that the velocity of center of mass is going to remain same and momentum of center of mass is going to remain same. Clear है ये चीज? तो इस पे अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करते हैं. सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज a particle of mass 3m is lying on a horizontal surface. A particle of mass 3m is lying on a smooth horizontal surface, and it explodes into two particles of mass m and 2m. It explodes into two particles of mass m and 2m. 2m is moving in this direction with speed v. Then find out the speed of m. Or I am not giving the direction, just tell in which direction, what will be the velocity of m, direction as well as the magnitude in terms of small v, because here we don't have any numerical value. So what is happening? The stone was kept at rest. So initially the system was having only one body, but now it is exploding. Okay, and after that one body has a velocity v and another body has a velocity v dash, and we have to find out v dash in terms of v. So how we'll do it? So here what we'll do, we know that p initial should be equal to p final. Why? Because this is kept on a smooth horizontal surface. So if they are moving also, if the particles are moving, these two particles are separately moving, then also there is no force in horizontal direction because friction is not there. Also these two particles, this was exploded and these two are formed. Why this happened? Because इनके यहाँ पे अंदर कुछ रिएक्शन हुई होगी, जो बॉम्ब एक्सप्लोड होते हैं वैसे ही होते हैं ना. सो यहाँ पे कुछ उनके बीच में कुछ इंटरेक्शन हुआ होगा एंड ये एक्सप्लोड हुआ. सो इसने इस पे फोर्स लगाया, इसने इस पे फोर्स लगाया, इन दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स लगाया और एक्सप्लोड हुए. सो फॉर दिस कंप्लीट सिस्टम दैट फोर्स इज इंटरनल. जो भी हुआ दैट वाज इंटरनल. सो यहाँ पे अगेन द नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज 0. सो वी कैन राइट F net in x direction is 0 on the system. So A of center of mass is 0, V of center of mass is constant, and momentum of center of mass, momentum of the system will be constant. Clear? So we can write P final is equal to P initial. So initially क्या था? Initially its velocity was 0. ये तो अपना चुपचाप रेस्ट में पड़ा हुआ था. So its initial velocity is 0. So P initial क्या है? It is 3m into 0. Initially the momentum is 0. Finally what is the momentum? तो मैंने मान लिया, भाई सोच के देखो, अगर ये इस साइड जा रहा है and the velocity of center of mass has to be 0, then इसको किस साइड जाना चाहिए? इसको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए. तो now P final, तो मैंने मान लिया अगर गलत होगा तो वो नेगेटिव में आ जाएगा. सो P फाइनल इज इक्वल टू इट्स मास इनटू वेलोसिटी 2mv एंड प्लस इट्स मास इनटू इट्स वेलोसिटी, इट इज माइनस v डैश. सो v डैश इज a value and its direction is in this direction. So this is going to be 0 because P final is equal to P initial. So what we have, v dash is equal to 2v. So the first particle of mass 2m is moving in this direction with v, and second particle which is of mass m will move in this direction with speed 2v. Its speed will be 2v. Now let's say that 3m was moving in this direction with 20 meter per second, and after it got exploded, here we have m and here 2m, it is moving in this direction with 25 meter per second. Then what is the speed of this mass small m? What is the speed of this mass? So again what we will do, now initially this particle was not at rest, so initial momentum of the system is not 0. So again the case is same, there is no force in x direction, so we can use all of these. So we have P initial is equal to P final. So initial momentum was 3m into 20. Please keep directions in mind.
कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है, जहां प्लस है माइनस है उस चीज को ध्यान में रखेंगे. सो हियर आई एम टेकिंग प्लस इन दिस डायरेक्शन, माइनस इन दिस डायरेक्शन. सो आई हैव इनिशियली it has 20 meter per second, तो initial momentum is this, final momentum is 2m into 25. और इसका क्या है, इसकी वेलोसिटी हमने मान लिया इधर है, तो क्या आ जाएगा प्लस m into माइनस v डैश. तो यहां से हमारे पास क्या आया, ये है 60 इज इक्वल टू 50 प्लस m into माइनस v डैश, सॉरी यहाँ पे माइनस v डैश. सो माइनस v डैश इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. सो v डैश इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब क्या हुआ, मैंने ये माना था कि द पार्टिकल m इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ स्पीड v डैश. v डैश हमने एक वैल्यू लिया, v डैश इज अ वैल्यू 5, 10, 15 और वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए मैंने क्या लिखा माइनस v डैश. तो यहाँ पे क्या आई, वेलोसिटी इज इक्वल टू v डैश इज इक्वल टू माइनस 10. इसका मतलब क्या हुआ, मैंने पहले क्या माना था कि इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो v डैश की वैल्यू क्या आ गई माइनस 10. इट मीन्स दिस पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, in this direction it is moving with 10 and this is moving in this direction with 25. अब velocity of center of mass निकाल के देखो, तो velocity of center of mass इनिशियली क्या है, ये center of mass तो यहीं पे है, इसके सेंटर पे होगा, तो इनिशियली velocity of center of mass is 20. ये खुद ही एक ही पार्टिकल है तो वही center of mass को लेके चलेगा. So this is moving with 20, तो initially velocity of center of mass is 20. लास्ट में क्या हो गई 25 into 2m, 25 into 2m plus 10 into m divided by 3m. So it is 50 plus 10 divided by 3, it is 20 meter per second. ठीक है भाई, ऐसे ही आना चाहिए. क्लियर है. So हमारे पास क्या आया कि जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी विल बी plus 10 meter per second. So write your next question. If we have a system where a mass capital M is hanging from the ceiling and a bullet of mass small m is coming with velocity v, and it gets embedded in the box. So what is the velocity of bullet if this system, bullet plus box system, completes a circle and this length is r. ठीक है. So what is happening, this bullet is coming with speed v and it is getting embedded inside this box. If this system completes a circle after the bullet gets embedded in the box, if this system completes a circle of this radius r, then what is the speed of this bullet, with what speed this bullet is coming, we have to find out. So this we have to find out. So now for completing the circle, we had studied in circular motion. For completing the circle, what is the condition, that the velocity at this point, if we have a mass m and if it has to complete the circle of this radius r, what should be the velocity at this point? The velocity should be v is equal to root 5 gr. The velocity at this point should be root 5 gr. Now here what is happening? Here this bullet is coming with some velocity. It will attack or it will get collided with this box. So what will happen? There will be some force acting on each other. They'll apply some force on each other, but those forces are internal. And at this instant, this tension is vertical. Mg is vertical. So when they are interacting with each other, tension is vertical, Mg is vertical. So that force is in vertical direction and definitely they are balancing each other. And these two forces which are bullet and box are applying on each other, these forces are in horizontal direction. But again, if we take this as complete system, that force will become internal. So we can say the net force in horizontal direction while they are in this process की bullet आई टकराई and then they are moving. तो यहाँ पे जो नेट फोर्स जो हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैसा आ रहा है, जीरो हो रहा है. So I can conserve the momentum of this system, this plus this system, just before collision and just after collision, है ना. just before collision ये ऐसे आ रहा है, तो just before collision and just after collision I can conserve the momentum. उसके बाद क्या होगा, उनका collision हुआ, वो attach हो गए एक दूसरे में, उन दोनों ने एक नई velocity gain की and after that they are completing the circle. तो वो अब हमारे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के पार्ट से बाहर है, क्योंकि अब क्या हुआ, उनने वेलोसिटी गेन कर ली. अब उसके बाद क्या होगा, इट विल
कंप्लीट दी सर्कल। सो नाउ वहां पे फोर्सेस लगने लगेंगे, बट हम लोग को उससे लेना देना नहीं है। हम लोग को जस्ट यहाँ जब कोलिजन हुआ तो हमें कोलिजन के पहले इट हैज सम वेलोसिटी, आफ्टर कोलिजन दिस प्लस दिस सिस्टम हैज सम वेलोसिटी, तो हमें वो देखना है। तो यहाँ कोलिजन के पहले एंड कोलिजन के जस्ट बाद वी कैन कंजर्व द मोमेंटम। तो मैंने क्या किया भाई, बिफोर कोलिजन इट्स वेलोसिटी इज v, इट्स वेलोसिटी इज 0, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, नाउ दिस बुलेट इज समवेयर हियर, है ना, it got embedded inside this. So now we have a system of m plus m which is moving with some velocity v dash. And what should be this velocity? This velocity should be equal to root 5 gr if this system has to complete the circle. अगर ये complete कर रहा है circle को, then this velocity should be root 5 gr. It means after the collision, after this movement, what should be the velocity of this complete system? It should be equal to root 5 gr. इसका मतलब I know the final velocity of the system. इस सिस्टम का जो फाइनल मोमेंटम वो मुझे पता है, क्या है, टोटल मास m प्लस m इंटू टोटल वेलोसिटी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, इनिशियली वी हैव टू पार्टिकल्स और टू ऑब्जेक्ट्स इन द सिस्टम, इट इज हैविंग मास m, स्पीड v, another block of mass capital M, speed v. This is initial condition, and final condition is what, that we have a system of mass m plus m and it has a velocity root 5 gr. Can we conserve the momentum now? Can we write the equation now? Yes. So initial momentum P initial is equal to P final. So P initial is mv is plus capital M into 0 is equal to final momentum is m plus m into root 5 gr. Clear? So from here we will get the initial velocity or the velocity with which the bullet is approaching towards the box should be equal to m plus capital M divided by small m into root 5 gr. This should be the velocity of bullet if this complete system is completing the circle after the collision. Clear? So here we are using the concept of circular motion. छोटा सा concept circular motion का भी use हो गया. Now another question is, if we have a card of mass 4m, a card of mass जो ठेला होता है ना, card of mass 4m, it is resting on the smooth horizontal floor. It is resting on the smooth horizontal floor. और इस पे एक मैन है of mass m, उस कार्ड पे, उस ठेले पे बैठा हुआ है या खड़ा है, जो भी है. So now अगर ये कार्ड से जंप करता है विथ 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड, ठीक है, ऐसे जंप करके नीचे, कार्ड से नीचे उतरा विथ 20 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द कार्ड, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ कार्ड, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार्ड, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड. तो मैंने मान लिया कि जो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द कार्ड है, अभी इस बार डायरेक्शन की बात नहीं करते, पहले हमने क्या किया था, हमने देखिए कि अच्छा मोस्टली इट शुड मूव इन दिस डायरेक्शन. हमने जो पहला क्वेश्चन लिया था उसमें हमने देखा कि हाँ, अगर एक मास इधर मूव कर रहा है तो दूसरा इधर मूव करना चाहिए, अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 था तो. अब यहाँ पे क्या है, अगेन हियर इट इज रेस्टिंग ऑन दी स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, सो यहाँ पे अगेन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0. अब इसने कुछ वेलोसिटी गेन कर ली, तो इसने, इसको क्या करना चाहिए, इसको इधर वेलोसिटी गेन करना चाहिए. लेकिन हम एक काम करते हैं, अभी मैंने इधर पॉजिटिव लिया, इधर नेगेटिव लिया. अभी हम एक काम करते हैं, हमने मान लिया कि हमें डायरेक्शन नहीं पता, सो आई एम जस्ट टेकिंग माय वेलोसिटी वेक्टर टू बी v डैश. अब वो डायरेक्शन अपने आप आ जाएगा. इफ द कार्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, v डैश विल हैव अ नेगेटिव वैल्यू. क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या है, इनिशियली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0 और इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0. क्लियर? अब फाइनली क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी है 20 और इसकी वेलोसिटी है v डैश. तो अब हमारे पास क्या जाएगा, p फाइनल इज इक्वल टू p इनिशियल. p फाइनल इज m इंटू 20 प्लस 4m इंटू v डैश इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास क्या आ गया, v डैश इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड. मतलब v डैश की वैल्यू क्या है, -5 मीटर पर सेकेंड. इट मीन्स इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ हाउ मच स्पीड, 5 मीटर पर सेकेंड. तो जब ये 20 मीटर पर सेकेंड से जंप करेगा, व्हेन दिस विल जंप विथ 20 मीटर पर सेकेंड, जो कार्ट है वो इधर जाएगा कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड.
अब यहाँ पे देखो ये 20 से जंप कर रहा है और ये 5 से पीछे बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? इसका मास है छोटा, इसका मास है बड़ा। बेसिकली यहाँ पे क्या होना चाहिए, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करो तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, v1/v2 इज इक्वल टू m2/m1। तो अगर यहाँ पे दोनों सेम मास होते, अगर यहाँ पे दोनों कार्ड और ये मैन जो है सेम मास का होता, तो यहाँ पे क्या आता, v डैश इज इक्वल टू -20, वही आता ना, v डैश इज इक्वल टू -20। तो अगर दोनों सेम मास के हैं तो हम लोगों को फाइनली व्हाट वी वांट टू डू, हम चाहते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो 0 हो जाए। तो अगर एक ने इधर वेलोसिटी 20 गेन की तो दूसरा भी इधर वेलोसिटी 20 गेन कर लेगा, बिकॉज बोथ हैव सेम मासेस। तो एक ने मोमेंटम अगर इधर 20 m गेन किया तो दूसरा इधर 20 m गेन कर लेगा। बोथ आर गोइंग टू कैंसिल द मोमेंटम ऑफ ईच अदर और नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी 0 अगेन। लेकिन अगर एक मास छोटा है एक मास बड़ा है, तो अगर इसके पास वेलोसिटी 20 आई तो इसका मोमेंटम क्या है 20 m, इसको भी 20 m मोमेंटम चाहिए टू कैंसिल इट्स मोमेंटम। लेकिन इसका मास बड़ा है तो इसको वेलोसिटी छोटी भी रहेगी तो भी इट विल बी एबल टू कैंसिल द मोमेंटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ऑफ द सिस्टम। और इस सिस्टम का जो ये ऑब्जेक्ट है इसके मोमेंटम को कैंसिल करने के लिए इसका काम छोटी वेलोसिटी से भी चल जाएगा। सो इन दिस केस वी आर गेटिंग द वेलोसिटी ऑफ द कार्ड इक्वल्स टू -5 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द मोशन ऑफ द मैन। मैन का जो मोशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी गेन किया उसने, या कितने वेलोसिटी से चलने लगा कार्ड, इट इज मूविंग विद -5 और मैग्नीट्यूड इज 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ द मैन, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये जंप कर रहा है तो कार्ड इज गेनिंग सम वेलोसिटी, व्हेन द मैन इज जंपिंग कार्ड इज गेनिंग सम वेलोसिटी। तो अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी से इस केस में कितना है, v डैश इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन। तो अब क्वेश्चन ये है कि इफ मैन जंप्स विथ 20 मीटर पर सेकेंड विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार्ड, फाइनल वेलोसिटी ऑफ card, if it jumps with 20 meter per second with respect to final velocity of card, then find out final velocity of card. ठीक है, so it is gaining, the card is gaining some velocity। तो हमने ये कहा कि जो मैन जो जंप कर रहा है फ्रॉम दी कार्ड वो कितनी वेलोसिटी से कर रहा है, इट इज जंपिंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार्ड। देन व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार्ड। तो अब यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार्ड कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने ये मान लिया कि वेलोसिटी ऑफ कार्ड है इस डायरेक्शन में v डैश। ठीक है, मैंने मान लिया वेलोसिटी है ऑफ कार्ड इन दिस डायरेक्शन v डैश। तो यहाँ पे क्या जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ड। सो वेलोसिटी ऑफ मैन हमें निकालनी है क्योंकि when you will write p final is equal to p initial, आप कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, you are observing from ground कि भाई ये इतने से चल रहा है, ये इतने से चल रहा है। अच्छा, अब क्या होना चाहिए, so velocity of man with respect to card given है आपको 20 मीटर पर सेकेंड with respect to final velocity of card। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है, माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ड, सो इट इज माइनस v डैश। मैंने ऑलरेडी फिक्स कर लिया कि डायरेक्शन इज दिस एंड मैग्नीट्यूड इज v डैश, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, वेलोसिटी क्या है उसकी माइनस v डैश, माइनस डायरेक्शन v डैश मैग्नीट्यूड, सो इट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास क्या जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू 20 माइनस v डैश, 20 माइनस v डैश। अब लगाएंगे हम p फाइनल इज इक्वल टू p इनिशियल। सो p फाइनल क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन इनटू मास ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ कार्ड इनटू मास ऑफ कार्ड इज इक्वल टू, इनिशियली क्या था, इनिशियली तो 0 था, तो अब वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है 20 माइनस v डैश इनटू m प्लस वेलोसिटी ऑफ कार्ड कितना है माइनस v डैश। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझो। कभी कभी हम क्या करते हैं, हमें पता नहीं डायरेक्शन क्या होगा, तो हमने मान लिया कि वेलोसिटी इज v डैश, वो अपने आप आ जाएगा कि वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इट विल कम विद इट्स साइन। लेकिन कभी कभी क्या होगा, हमें पता है डायरेक्शन क्या है, तो हम पहली डायरेक्शन मान लेंगे कि डायरेक्शन इस साइड है,
तो फिर हमारे पास वैल्यू आएगी, वील गेट अ वैल्यू, क्योंकि आपने पहले डायरेक्शन डिसाइड कर लिया। नाउ v डैश इज अ मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे मैंने वैसे ही किया है, पहले मैंने बोल दिया कि ये v डैश है, v डैश इज अ मैग्नीट्यूड एंड इस डायरेक्शन इज इन दिस डायरेक्शन, सो इसलिए आई एम राइटिंग, मान लो v डैश मान लो 10 है, तो 10 इन दिस डायरेक्शन इट मींस -10 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास मैन का और ये हो गया कार्ट का, माइनस v डैश इंटू 4m इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास आएगा 20 माइनस v डैश माइनस 4v डैश इज इक्वल टू 0। सो 20 इज इक्वल टू 5v डैश एंड v डैश इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, v डैश इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों को अब आई वांट टू नो कि विथ व्हाट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो मैन है वो कितनी वेलोसिटी से जंप किया था। तो हम लोगों को पता है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट कितना था, 20 मीटर पर सेकेंड, विथ रिस्पेक्ट टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार्ट। तो वेलोसिटी ऑफ जो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन है वो कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ कार्ट, है ना। velocity of man with respect to cart is equal to velocity of man minus velocity of cart, so velocity of man is equal to velocity of man with respect to cart plus velocity of cart. So velocity of man with respect to cart कितना है, it is 20 and velocity of cart कितना है, it is 4 in this direction, 4 in this direction, मतलब -4। velocity of man with respect to cart is 20, velocity of cart is 4 in this direction, so क्या किया मैंने, -4। मतलब बेसिकली जो मैन है वो कितनी वेलोसिटी से जंप किया, उसने 20 की वेलोसिटी से जंप किया। अब फर्स्ट इससे पहले जो प्रॉब्लम किए थे उसको और इसको कंपेयर करते हैं। सो इन द लास्ट प्रॉब्लम वो 20 से जंप किया, इनिशियली द सेंटर ऑफ मास वाज हैविंग 0 वेलोसिटी, मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास वाज 0। अब उसने क्या किया, 20 से जब जंप किया तो उसने कितना मोमेंटम गेन किया, 20m, उसने 20m मोमेंटम गेन कर लिया। हमें मोमेंटम 0 कराना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर ये भी m मास का होता तो इसको भी 20 वेलोसिटी गेन करनी पड़ती, लेकिन ये 4m था तो इसलिए इसने 5 मीटर पर सेकेंड गेन किया इन द लास्ट प्रॉब्लम, और इधर 20m, इधर 4m इंटू 5 20m, नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0। बट नाउ इन दिस केस जो एक्चुअल वेलोसिटी जिससे उसने जंप किया है वो कितनी है, 16 है ना। हमने क्या निकाला, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार्ट इज 20, बट एक्चुअल वेलोसिटी जिससे उसने जंप किया है वो कितनी है, 16। इसका मतलब उसने मोमेंटम कम ही गेन किया, पिछले में 20 था, इधर 16 है। इन दिस केस ही हैज गेन्ड हाउ मच मोमेंटम, 16m, तो इस बार कम मोमेंटम गेन किया, तो ये भी क्या करेगा, कम वेलोसिटी गेन करेगा। तो इस बार कार्ट की वेलोसिटी कितनी आई, 4 आई। पिछले केस में इट वाज 5 इन दिस डायरेक्शन, इन दिस केस इट इज 4 इन दिस डायरेक्शन। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इनिशियली द कार्ट इज हैविंग a velocity equal to 20 meter per second. This cart is moving with 20 meter per second in this direction. Initially the cart is moving with 20 meter per second in this direction. Now the man is jumping from the cart with 20 meter per second with respect to cart. मतलब कि initial velocity of cart. I'll explain again. So now the cart is moving with 20 meter per second. Now this is the third part of the question. So cart is already moving with 20 meter per second on this smooth horizontal floor, and now man jumps with 20 meter per second with respect to cart. मतलब with respect to initial velocity of cart. अभी cart की velocity कितनी है? It is 20 meter per second. Man इस पे बैठा हुआ है. Now he is jumping with 20 meter per second with respect to this cart. तो अभी कार्ट 20 से चल रही है, तो 20 की रिस्पेक्ट में वो 20 से जंप किया। देन व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार्ट, ठीक है। सो नाउ द मैन इज मूविंग जंपिंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार्ट, एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार्ट इज 20 मीटर पर सेकेंड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो नाउ द सिस्टम हैव सम इनिशियल मोमेंटम, सो फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा, उतना ही होगा जितना इनिशियल है। सो नाउ कैन वी डू दिस प्रॉब्लम, यस। सो अब हमारे पास क्या है, नाउ वी हैव वेलोसिटी ऑफ कार्ट इज इक्वल टू, या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार्ट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार्ट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड।
सो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ कार्ट मैन क्या हो जाएगा? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ कार्ट या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार्ट। सो नाउ वेलोसिटी ऑफ मैन विल बी, ये इक्वेशन तो एकदम फिट है ना दिमाग में, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार्ट, तो इसको इधर ले आए, क्लियर। या फिर वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू दैट फ्रेम प्लस वेलोसिटी ऑफ दैट फ्रेम। सो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू IC प्लस वेलोसिटी ऑफ IC, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम प्लस वेलोसिटी ऑफ फ्रेम, उसके खुद के एफर्ट इनसाइड दैट फ्रेम प्लस फ्रेम के एफर्ट, क्लियर। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार्ट इज 20, वेलोसिटी ऑफ कार्ट इज 20। सो अब जो मैन है वो कितने से जंप किया, उसने 40 मीटर पर सेकेंड से जंप किया, 40 मीटर पर सेकेंड से जंप किया, लेकिन इट इज सीन फ्रॉम ग्राउंड, लेकिन कार के रिस्पेक्ट में कितने से जंप किया, कार्ट के रिस्पेक्ट में कितने से जंप किया, 20 से। बट बिकॉज समवन इज ऑब्जर्विंग फ्रॉम ग्राउंड, वो क्या देखेगा कि उसकी खुद की 20 थी और कार्ट की भी तो 20 थी ना, तो व्हेनेवर यू गेट डिटैच फ्रॉम अ बॉडी, आप उसकी वेलोसिटी को लेकर के जाते हो, उसकी वेलोसिटी को साथ में लेकर के जाते हो, तो उसने कार्ट से जंप करते टाइम 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी ली प्लस कार्ट ने उसको और 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दी। सो नाउ ही इज जंपिंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार्ट इज 20 मीटर पर सेकेंड, velocity of man is 40 meter per second. Now we have to find out final velocity of cart, कि final velocity of cart क्या होगा। तो initial situation हमारे पास क्या है कि भाई cart was moving with, initially क्या था, cart was moving with 20 meter per second. Finally क्या हुआ, the man has some velocity which is 40 meter per second in this direction and cart has some velocity, final velocity v dash, हमें नहीं पता कितनी है, किधर है वो भी नहीं मालूम, इसलिए मैंने डायरेक्टली क्या ले लिया, वेक्टर ले लिया, ठीक है। तो ये अपने आप विथ साइन आएगा। जब आप डायरेक्शन ऑलरेडी डिसाइड कर लेते हो तो फिर क्या आता है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है, और अगर आपने गलत डायरेक्शन डिसाइड किया है तो हमेशा वो माइनस के साथ आता है। तो अभी मुझे डायरेक्शन भी नहीं पता, तो मैंने ले लिया कि v डैश है, इधर होगा तो पॉजिटिव आएगा, इधर होगा तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमें लगाना है PF इज इक्वल टू PI, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, दिस इज द फाइनल कंडीशन। सो m इंटू 40 प्लस 4m इंटू v डैश, दिस इज द फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 4m, नॉट 4m, कितना आएगा बताओ। सो इनिशियली द कार्ट वाज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड, तो कार्ट जब 20 से चल रहा है तो 4m प्लस m, पूरा का पूरा सिस्टम कितने से चल रहा है, इट इज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड। सो इनिशियली दिस कंप्लीट सिस्टम वाज हैविंग वेलोसिटी इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, तो कितना आ जाएगा 5m इंटू 20, ये पूरा का पूरा सिस्टम 20 से चल रहा था। सो m 40 प्लस 4v डैश इज इक्वल टू 100, सो 4v डैश इज इक्वल टू 60, so v dash is equal to 15 meter per second, v dash is equal to 15 meter per second। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि कार was initially moving with 20 meter per second, ठीक है। initially the car was moving with 20 meter per second, finally car is moving with 15 meter per second in the same direction, in the same direction। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये कुछ वेलोसिटी लेके चला गया, कि कुछ वेलोसिटी लेके ऑलरेडी चला गया। नाउ इसको क्या करना है, इसको ये मोमेंटम तो उसको मेंटेन रखना है ना, ये मोमेंटम उसको मेंटेन रखना है। सो नाउ m इज हैविंग सम वेलोसिटी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, m की कुछ अलग से वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इसने क्या कहा कि हम अपनी वेलोसिटी को थोड़ी सी कम कर लेते हैं। तो बेसिकली जो वेलोसिटी आपकी फाइनल आ गई ऑफ द कार्ट इज 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ये चीज। अब इसी में हम क्या करते हैं कि हमने माना कि इसको, ये जो वेलोसिटी ऑफ मैन है इट इज विथ रिस्पेक्ट टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार्ट। फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार्ट हमें नहीं मालूम, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार्ट हमें फाइंड आउट करना है। इफ मैन जंप्स विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार्ट, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार्ट। सो नाउ व्हाट इज द सीन कि इनिशियली द सिस्टम, दिस कंप्लीट सिस्टम वाज हैविंग अ वेलोसिटी इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड,
So initially the system was having velocity 20 meter per second in this direction. Now man is jumping from the cart, and the cart will change its velocity. Cart will have some new velocity. So now they are saying that the man is jumping from the cart with 20 meter per second with respect to final velocity of cart. Final velocity जो आने वाली है उसके रिस्पेक्ट में it is moving with or it is jumping with 20 meter per second. Then find out the final velocity of cart. So now here we have velocity of cart. Initial velocity of cart is equal to 20 meter per second. Velocity of man with respect to final velocity of cart is how much? 20 meter per second. और मैंने मान लिया final velocity of cart is v dash. Again we don't know the direction. तो मैंने v dash ले लिया, वो अपने आप direction के साथ आ जाएगा. So now I have velocity of man is equal to velocity of man with respect to cart plus velocity of cart. So कितना आ जाएगा? 20 plus v dash. ठीक है. So this is velocity of man. So initial क्या है? Initial situation is this. Final situation ये है velocity of man and ये है velocity of cart. So initially this was the picture and this finally this is the picture. So अब हम क्या लगाएंगे? P final is equal to P initial. So P final is equal to कितना आ जाएगा? M into velocity of man 20 plus v dash plus ये क्या आ गया? ये man का मोमेंटम आ गया. कार्ट का मोमेंटम क्या होगा? 4m into v dash. ये फाइनली क्या हो गया? फाइनली वेलोसिटी ऑफ मैन, फाइनली वेलोसिटी ऑफ कार्ट इज इक्वल टू इनिशियल सिचुएशन. इनिशियल में क्या है? 5m is moving with 20 meter per second. So now what velocity will gain? 20 plus v dash plus 4v dash is equal to 100. So now we have 5v dash is equal to 80, v dash is equal to 16 meter per second. So v dash is equal to 16 meter per second. तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि पहले वो कार जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था. नाउ इट इज मूविंग विद 16 मीटर पर सेकेंड एंड जो मैन जो जंप किया है, मैन ने जिस वेलोसिटी से जंप किया है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितना है? 20 प्लस v डैश विच इज 20 प्लस 16 दैट इज 36 मीटर पर सेकेंड. और पिछले केस में कितना आया था? पिछले केस में आया था velocity of man was 40 मीटर पर सेकेंड. तो इसमें क्या हुआ कि इसने ज्यादा वेलोसिटी से जंप किया विथ रिस्पेक्ट टू कार या फिर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. इसने ज्यादा वेलोसिटी से जंप किया तो इसलिए उसने कार्ट ने भी अपनी वेलोसिटी क्या कर दी थी? 15 मीटर पर सेकेंड. तो इसने भी अपनी वेलोसिटी इस साइड ज्यादा कम कर दी. मतलब बेसिकली क्या कर रहे हैं? कार्ट की वेलोसिटी पहले 20 थी इन दिस डायरेक्शन, फिर क्या हो गई? 16 हो गई. इन लास्ट केस 15 हो गई. इसका मतलब हमने -5 इधर ऐड कर दी और इस केस में -4 इधर ऐड कर दी. तो व्हेन द मैन वाज जंपिंग विद 40 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हमने ज्यादा कम की. व्हेन इट इज जंपिंग विद 36 मीटर पर सेकेंड हमने थोड़ी सी कम की. ठीक है. तो दिस इज वन मोर एग्जांपल ऑन द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी फ्रॉम स्प्रिंग मास सिस्टम. So if we have a spring block system, initially this system was at rest. This is of mass m and the spring is in its natural length. Another block of mass m is approaching towards the spring mass system with speed v. It is approaching towards this system with speed v. Then find out the maximum compression in the spring. And velocity of blocks at maximum compression. Please solve this problem. So let's see this problem. This block is approaching toward this spring mass system with a speed v. Clear? So now what will happen? It will collide with this end or it will touch this end. So it has some velocity. So now it will start compressing the spring. It will start
compressing the spring, and because of which a force will get generated, a tension will get generated in this spring, which is going to push this block away, and which is going to push this block away. So now what will happen? This block is going to gain some velocity, and this block will slowly start losing its velocity because it is already having some velocity. So it will start losing some velocity because acceleration is acting opposite to the direction of velocity. And this block, which was at rest initially, will start gaining some velocity in this direction. So now slowly what will happen? Slowly, now for this moment, velocity of, let's say this is A and this is B, velocity of A is greater than velocity of B. Now velocity of A क्या है? Velocity of A is greater than velocity of B, क्योंकि B के पास तो velocity है ही नहीं. Slowly it is gaining the velocity. So जब तक velocity of A is greater than velocity of B, जब तक velocity of A is greater than velocity of B, क्या होगा? A is moving faster, B is moving slower. So compression will increase. समझ में आ रही है ये बात? Compression will increase. क्योंकि A फास्ट जा रहा है, B स्लो जा रहा है, तो क्या होगा? Compression will increase. कब तक compression increase होता रहेगा? Now slowly this velocity of A is decreasing and velocity of B is increasing. ठीक है, velocity of A धीरे-धीरे क्या हो रहा है? Decrease हो रहा है, और velocity of B धीरे-धीरे increase हो रहा है. तो at certain moment velocity of A and velocity of B क्या हो जाएंगे? Equal. एक क्या हो रहा है? एक 0 से बढ़ रहा है और एक कुछ वैल्यू से कम हो रहा है. तो किसी इंस्टेंट पे both will have same velocity. किसी इंस्टेंट पे both will have same velocity. अब जब velocity of A is equal to velocity of B, velocity of A is equal to velocity of B, at that instant what will happen? उस इंस्टेंट पे क्या होगा? दोनों साथ में चल रहे हैं, कोई कंप्रेशन नहीं, कोई एक्सटेंशन नहीं. So at that particular instant ये भी B से चल रहा है, ये भी B से चल रहा है. इसके बाद क्या होगा? इसके बाद भाई कंप्रेशन तो अभी भी है इनसाइड दैट स्प्रिंग, कंप्रेशन तो अभी भी है ना, कंप्रेशन जीरो तो नहीं हुआ है, कंप्रेशन इज स्टिल देयर, कंप्रेशन इज स्टिल देयर. सो नाउ व्हाट विल हैपन? कंप्रेशन अगर है तो अभी भी A पे इस साइड फोर्स लग रहा है और B पे इस साइड फोर्स लग रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ B विल अगेन इंक्रीज, वेलोसिटी ऑफ A विल अगेन डिक्रीज. तो क्या हुआ? Initially velocity of A was more, velocity of B was less, so compression was increasing. Now for a moment velocity of A is equal to velocity of B. After that moment what will happen? Velocity of A अभी भी decrease हो रहा है, so it will start decreasing more. तो जैसे ये मैंने बनाया था, तो ये हो गया velocity of B, ये हो गया velocity of A. तो यहाँ पे क्या है? velocity of A अभी तक B से बड़ा है, B की वेलोसिटी ये है, A की वेलोसिटी ये है. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, ये ग्राफ को याद नहीं रखना है, जस्ट कि वो कैसे एक पॉइंट में मीट करेंगे. तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ A एंड B दोनों की इक्वल हो गई. अब वेलोसिटी ऑफ A और डिक्रीज हो रहा है और वेलोसिटी ऑफ B और इंक्रीज हो रहा है. सो नाउ वेलोसिटी ऑफ A विल डिक्रीज, वेलोसिटी ऑफ B विल इंक्रीज. तो इस मोमेंट पे दोनों सेम थे. अब वेलोसिटी ऑफ B ज्यादा हो गई, वेलोसिटी ऑफ A कम हो गई. सो जो A ब्लॉक है इट इज मूविंग स्लो एंड जो B ब्लॉक है इट इज मूविंग फास्ट. तो अगर ये फास्ट जाएगा, ये स्लो जाएगा, तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा? कंप्रेशन धीरे धीरे कम होगा, नेचुरल लेंथ में आएंगे एंड देन एक्सटेंशन विल स्टार्ट हैपनिंग. समझ में आई बात? तो इसका मतलब एट दिस इंस्टेंट अप टू दिस इंस्टेंट compression was increasing. और इस मोमेंट पे कंप्रेशन अभी भी है. आफ्टर दिस मोमेंट क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ A इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ B, क्योंकि अभी दोनों सेम थे. इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, इसकी वेलोसिटी कम हो गई. सो नाउ वेलोसिटी ऑफ A इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ B, सो कंप्रेशन विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. तो किस मोमेंट पे कंप्रेशन मैक्सिमम होगा? यहां से यहां कंप्रेशन बढ़ा और फिर यहां से यहां कंप्रेशन कम होने लगा. तो कंप्रेशन मैक्सिमम कहां है? कंप्रेशन इज मैक्सिमम व्हेन दे हैव द सेम स्पीड. तो A और B की स्पीड जब सेम है, उस पॉइंट पे कंप्रेशन क्या है? उसमें मैक्सिमम है. तो हमें मैक्सिमम कंप्रेशन फाइंड आउट करना था, तो हमने देख लिया कि मैक्सिमम कंप्रेशन कब है. सो व्हेन बोथ द ब्लॉक्स विल हैव सेम वेलोसिटी, एट दैट मोमेंट कंप्रेशन इज गोइंग टू बी मैक्सिमम. अब इससे क्या फायदा हुआ? सो इनिशियली इसकी स्पीड क्या थी? v, इसकी स्पीड थी 0. सो नाउ वी नो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम.
अब हम मोमेंटम कंजर्व करने की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट वी शुड चेक वेदर द नेट फोर्स इन दैट डायरेक्शन इज जीरो और नॉट फॉर दैट पर्टिकुलर सिस्टम। सो फ्रिक्शन तो यहाँ पे है नहीं। अब इसने जब इसको टच किया, यहाँ पे जब फोर्स लगाया बिकॉज ऑफ कंप्रेशन, तो वो क्या है, नाउ दिस इज अप्लाइंग सम फोर्स ऑन दिस, इट इज अप्लाइंग सम फोर्स ऑन दिस। सिमिलरली इन दोनों के बीच में क्या है, फोर्स है। सो नाउ फॉर दिस कंप्लीट सिस्टम जो स्प्रिंग फोर्स है, इट इज एन इंटरनल फोर्स। ये इस पे लगा रहा है, 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 बात खत्म। इट इज एन इंटरनल फोर्स। सो फॉर दैट कंप्लीट सिस्टम नेट फोर्स इज जीरो इन दी एक्स डायरेक्शन एंड वी कैन कंजर्व द मोमेंटम। अब कंजर्व कौन कौन से पॉइंट के बीच में करना है, तो कंजर्व हमें करना है कि ये सिचुएशन जब थी, दिस इज सिचुएशन 1, एंड सेकंड सिचुएशन कब, व्हेन बोथ आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, व्हेन बोथ आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। तो अब हमें क्या मिल जाएगा, वो वेलोसिटी मिल जाएगी कि वहां पे उनकी वेलोसिटी क्या थी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। अब P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, तो इनिशियल मोमेंटम क्या है ऑफ द सिस्टम, इसका तो कुछ नहीं है, सिर्फ इसका है, mv इज इक्वल टू P फाइनल। तो हमने मान लिया जो इनकी वेलोसिटी है v डैश और इसकी क्या है, इसकी भी v डैश। द इंस्टेंट व्हेन बोथ आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी कितना है, v डैश v डैश, तो कितना हो जाएगा mv डैश प्लस mv डैश। तो यहां से हमारे पास क्या आया, v डैश इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय 2। इट मींस at the instant of maximum compression, both the blocks are moving with what speed, with v by 2 speed. Now I want to find out the compression in the spring. So this is the instant when they have maximum compression. But now what is the value of that maximum compression? How we will find out? So for that what we can do, we can conserve the energy. यहाँ पे कोई energy का loss नहीं है, there is no friction, तो mechanical energy initially whatever mechanical energy was there, finally the same mechanical energy should be there. So initially what we have, kinetic energy of block 1 plus, does this system have any kinetic energy? No. Potential energy? No. So is equal to, finally this has some kinetic energy, this also has some kinetic energy, and this spring has some potential energy, and that potential energy is due to maximum compression. So now we can find out half k x max square, and from there we will be able to find out the maximum compression. So now we will conserve the energy. So I have half m v square is equal to half m, इसकी फाइनली काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m v by 2 स्क्वायर, और इसकी भी काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m v by 2 स्क्वायर। तो इसलिए मैंने क्या किया, 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ k x max स्क्वायर, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट इज k। सो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, वी हैव mv स्क्वायर प्लस 2mv माइनस 2mv स्क्वायर बाय 4 is equal to kx max square. So now we have 2. So mv square minus mv square by 2, mv square by 2 is equal to kx max square. So here we have x max is equal to m by 2k and v outside, v under root m by 2k. This is the maximum compression in the spring. This will be the maximum compression in the spring. So here maximum compression is happening when both the blocks are moving with the same velocity. Same thing we can say in other way कि भाई यहाँ पे क्या हुआ, we are conserving energy at two instants, या फिर आप ये बोल सकते हो कि अब कुछ एनर्जी जो है वो इसमें स्टोर हो रही है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी नहीं इनिशियली, फाइनली कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, इट मींस काइनेटिक एनर्जी पक्का रिड्यूस हुई होगी फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम। तो व्हाट वी कैन डू, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज हाफ m v स्क्वायर, ठीक है, फाइनली काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v by 2 स्क्वायर इनटू 2। सो दिस इज द लॉस, पहले काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, अभी वो डिक्रीज होके इतनी हो गई, तो लॉस कितना हुआ, इतना लॉस हुआ, इज इक्वल टू हाफ k x max स्क्वायर। दिस इज द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। कितना गेन हुआ, पहले 0 थी अभी इतनी हो गई, तो गेन कितना हुआ, इतना ही हुआ। सेम इक्वेशन हमें मिल रहा है यहाँ से, हाफ m v स्क्वायर माइनस दिस कंप्लीट टर्म इज इक्वल टू हाफ k x max स्क्वायर।
तो इसी में अब आप क्या कर सकते हो, इसको ले लो 3m मास, दिस इज नाउ 3m। अब फाइंड आउट करो व्हाट विल बी द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक्स एट मैक्सिमम कंप्रेशन। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपको रिपीट करना है व्हेन वी हैव m एंड 3m। क्लियर है, तो ये आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करेंगे।